हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपके प्रैक्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज हमने जो प्रैक्टिकल स्टडी करना है उसका एम है टू डिटरमाइन द स्पेसिफिक रिएक्शन रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल एसीटेट by the hydrogen ion at room temperature. At room temperature. Now, this practical comes under the physical chemistry, and it is a chemical kinetics practical. What is chemical kinetics? It is the branch of chemistry which deals with the rate of reactions. Now, the chemical required for this practical is N/2 HCl solution, N/10 NaOH solution and इथाइल एसीटेट, जिसकी हम हाइड्रोलिसिस स्टडी करेंगे। द apparatus required here are burette, pipette, burette stand, beaker, conical flask, a stopwatch, measuring cylinder, and a water bath. And the chemical reaction in this practical is we are studying the hydrolysis of ethyl acetate. So that means ethyl acetate upon hydrolysis will give acetic acid plus ethyl alcohol. This is ethyl acetate. Now, अगर हम ये रिएक्शन को देखें तो इस रिएक्शन से हमें क्या लगता है कि दैट इट इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, बिकॉज हेयर द रेट विल डिपेंड अपॉन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इथाइल एसीटेट कॉन्सेंट्रेशन एंड द वाटर, बट एक्चुअली इट इज अ pseudo unimolecular reaction. That means here the rate will only depend upon the concentration of this ethyl acetate. What are pseudo unimolecular reaction? A reaction which involve more than one reactant, but under the given condition it follow the first order reaction, that is the pseudo unimolecular reactions. Now, for finding out the order of a reaction, we have 5 methods: integration method, half-life period method, graphical method, want of differentiation method, and the Ostwald isolation method. Here in this process, in this practical, we are discussing the integration method or hit and trial method, you can say, and one graphical representation is also used. Now, the formula used for this practical is K is equal to 2.303 upon T log of V infinity minus V node upon V infinity minus VT. So this is the formula. Now, V infinity minus V node and V infinity minus VT. For this we have to draw a table. Firstly मैं टेबल ड्रॉ कर रही हूँ और आफ्टर दैट मैं आपको प्रोसीजर बताऊंगी. फर्स्ट इज द सीरियल नंबर, द सेकेंड इज द टाइम, third is the volume of NaOH used in ml, and last is the V infinity minus VT. Here is the initial reading जब आप ब्यूरेट में स्टार्ट करोगे, एंड नेक्स्ट फाइनल रीडिंग जो वॉल्यूम आपका यूज होएगा, दैट इज द फाइनल रीडिंग, एंड हियर इज द वॉल्यूम यूज्ड which is final reading minus initial reading. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, and the time interval here as
फर्स्टली हम एक स्टार्टिंग में लेंगे इमीडिएटली, देन आफ्टर every 10 minutes 20 30 40 and last is the v infinity. now अब हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की. what is the procedure? so हम क्या करते हैं, सबसे पहले we will take a beaker in which we take 50 ml of n/2 HCl solution, and in this we will add 5 ml of ethyl acetate, जिसकी हमने हाइड्रोलिसिस स्टडी करनी है. and then we will wait for some time so that both the solution will have the same temperature. after that we will pipette out 5 ml of this reaction mixture and take it into a conical flask. एंड इस कॉनिकल फ्लास्क में हमने पहले से ही क्या डाली हुई है, क्रस्ट आइस टू अरेस्ट द रिएक्शन. सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस टोटल रिएक्शन मिक्सचर में से 5 ml पिपेट करके एक कॉनिकल फ्लास्क जिसमें हमने पहले से ही क्रस्ट आइस डाली हुई है उसमें डाल देंगे. एंड इसमें हम 1-2 ड्रॉप फिनोफ्थलीन की भी ऐड करेंगे, which is an indicator. and then हम क्या करेंगे, इसको टाइट्रेट करते हैं against the n/10 NaOH solution. इट्स अ बेस, और इसको हम ब्यूरेट में लेके चलेंगे. एंड देन हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको टाइट्रेट करेंगे, और एक लाइट पिंक कलर जैसे ही आएगा तो वो हमें क्या इंडिकेट करेगा, दैट इंडिकेट द एंड पॉइंट. सो वो जो हमारे पास रीडिंग आएगी दैट इज योर वी नोड रीडिंग, दैट इज एट दिस इनिशियल रीडिंग. सो स्टार्टिंग में सपोज करो ब्यूरेट में हमने जो वॉल्यूम लिया है वो 0 लिया है, और जो फाइनल रीडिंग आई है वो हमारे पास क्या आएगी, V0. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, हम हर 10 मिनट के बाद आफ्टर 10 मिनट्स मीन्स हम रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद क्या करेंगे, 5 ml पिपेट आउट करेंगे, उसको कॉनिकल फ्लास्क में ऐड करेंगे जिसमें हमने पहले से क्या डाली हुई है, क्रस्ट आइस. तो हम अगेन क्या करेंगे, 5 ml इथाइल एसिटेट जो रिएक्शन मिक्सचर है आपका, 5 ml ऑफ मिक्सचर को हम ऐड करेंगे, 1-2 ड्रॉप ऐड करेंगे फिनोफ्थलीन की, और उसको अगेन क्या कर देंगे, टाइट्रेट कर देंगे अगेंस्ट दिस n/10 NaOH सोल्यूशन. तो हमारे पास वो जो रीडिंग आएगी दैट इज योर V10. अगेन 10 मिनट बाद, दैट मीन्स आफ्टर 20 मिनट्स वी गेट दी फाइनल वॉल्यूम 20, देन V30, V40. सो दिस इज दी रीडिंग. और हम सपोज करते हैं कि स्टार्टिंग में हमारे पास जो वॉल्यूम हम ब्यूरेट में लेके चल रहे हैं वो आपका 0 होगा, तो यहाँ पर जो वॉल्यूम यूज आएगा दैट इज फाइनल रीडिंग माइनस द इनिशियल, दैट इज V नोड माइनस 0, V10 minus 0, V20 minus 0, V30 minus 0, V40 minus 0. Now the last is V infinity. V infinity के लिए हम क्या करते हैं, हम जो हमारा रिएक्शन मिक्सचर है उसमें से हमने क्या करेंगे, अराउंड 30 या 20 ml हम रिएक्शन मिक्सचर लेंगे, अराउंड 20 और 30, और उसको हम क्या करते हैं, एक वाटर बाथ में हीटिंग पे लगा देते हैं. उसको हम क्या करेंगे, वाटर बाथ में हीटिंग पे लगा देंगे. कितने टाइम के लिए, फॉर हाफ एन आवर के लिए. और जो हम टेम्परेचर यहाँ पर सेट करेंगे वो अराउंड 60 to 70 डिग्री. सो जब हम इसको क्या करेंगे, ऐसे हीट करेंगे हाफ एन आवर के लिए, तो हमारे पास जो यहाँ पर रिएक्शन मिक्सचर है वो क्या होगा, वो इनफाइनाइट टाइम के लिए क्या कर चुका होगा, रिएक्ट कर चुका होगा. आफ्टर दैट हम क्या करेंगे, इस बीकर को नीचे उतारेंगे और उसको क्या करेंगे, कूल करेंगे. नाउ कूल दी रिएक्शन मिक्सचर. अगेन कूलिंग के बाद हम क्या करेंगे, 5 ml पिपेट आउट करेंगे इस रिएक्शन मिक्सचर को, 5 ml, और उसमें हम उसको किस में ऐड करेंगे, कॉनिकल फ्लास्क में जिसमें हमने पहले से ही क्रस्ट आइस रखी हुई है. देन हम इसमें क्या डालेंगे, अगेन 1-2 ड्रॉप ऑफ फिनोफ्थलीन, एंड उसको टाइट्रेट कर देंगे अगेन अगेंस्ट दी n/10
10 NaOH solution. So this volume used when there is a presence of light pink color, it will indicate the last V infinity टेम्परेचर. सो स्टार्टिंग में हम सपोज करते हैं कि हमने इनिशियल वॉल्यूम 0 रखा हुआ है और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा V infinity. सो इट इज V infinity माइनस 0, दैट इज V infinity. नाउ हम कैलकुलेट करेंगे फिर टाइम को, सॉरी वॉल्यूम को, दैट इज V infinity माइनस VT. नाउ V infinity is your this. So firstly we will get V infinity minus V naught, then V infinity minus V10. T means the time. Next is the V infinity minus V20. Next V infinity minus V30, V infinity minus V40 and last ये रीडिंग हम शो नहीं करते. It is V infinity minus V infinity, that is, और ये हम वैल्यू यूज भी नहीं करनी है. नेक्स्ट हम क्या करेंगे, सो दिस इज अबाउट द प्रोसीजर जिसमें हमने क्या करना है, हर 10 मिनट के बाद रिएक्शन मिक्सचर को टाइट्रेट करना है अगेंस्ट दी N/10 NaOH सोल्यूशन. एंड उसके बाद हम ये ऑब्जर्वेशन टेबल में वैल्यूज पुट करेंगे और फिर हम क्या करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे. सो कैलकुलेशंस में हमने जो फॉर्मूला यूज किया दैट इज K इज इक्वल टू 2.303 अपॉन T log ऑफ V infinity माइनस V नोड अपॉन V infinity माइनस VT. सो दिस इज द फॉर्मूला. तो हम क्या करेंगे, हर बार ये वैल्यू को रखेंगे और वैल्यू रखने के बाद हम क्या करेंगे, K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. नाउ हर बार जब हम K की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे दैट इज फॉर K10, K20, K30, K40 एंड K50. हर बार हम जब वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे इट कम्स आउट टू बी अ कांस्टेंट वैल्यू. मीन्स ऑल दी 3 वैल्यूज ऑलमोस्ट कांस्टेंट एंड दिस इज अ हिट एंड ट्रायल मेथड. तो अगर हम यहाँ पर K की वैल्यूज निकालेंगे, सारी वैल्यूज पुट करने के बाद आपके पास जो K है वो एक कांस्टेंट वैल्यू शो कर रहा है, दैट मीन्स इट्स अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. उसके बाद हम क्या करते हैं, एक ग्राफ प्लॉट करते हैं. ग्राफिकल मेथड भी हम यूज करते हैं जिसमें हम क्या करेंगे, एक ग्राफ प्लॉट करेंगे टाइम वर्सेस log of V infinity minus V node upon V infinity minus VT. So it will be a straight line graph which shows that it is a first order reaction. That means the specific reaction rate of hydrolysis of ethyl acetate follow the first order reaction and it is a pseudo unimolecular reaction. So this is all about the practical, that is to determine the specific reaction rate of the hydrolysis of ethyl acetate. Thank you.